Now 5 star this sum. Question is, I have a right triangle. Mute karo please. I have a right triangle over here. Okay. PT is perpendicular to the base. QS is known as 1/3 of QR. Question is to prove that 9PS square is 7PQ square. अब यही सम तुम्हारा हॉट्स में भी आएगा और वो जो हॉट्स में सम रहेगा ना, ये 1/3 के बदले 1/4, 1/2 ऐसा रहेगा. अगर ये 1/2, 1/4 रहेगा तो अकॉर्डिंगली ये नंबर भी चेंज हो जाएगा. ठीक है? Is that clear everyone? So as this number changes, this number will also change. But otherwise the whole sum is going to remain same. अगर तुमको ये सब समझा तो सिमिलर तुम्हारा एक और एक प्रीवियस सम जो बाकी है वो भी इसी मेथड में. Now let's start over here. First part, अपने को PS square में इंटरेस्ट है. Okay, so what is PS square equal to? Yes, please. PQ square minus QX minus PT square plus ST square. Is that clear? तो तुमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आता है. तो PS square is PT square plus ST square आता है. बट मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को PS square तो चाहिए, PT नहीं चाहिए. PT के बदले PQ चाहिए. So can you tell me PT के बदले PQ किस मेथड से ला सकते हैं? Any ideas? Pythagoras. PQ, PT के बदले PQ. नहीं, सोचो थोड़ा. Which method can I use to remove PT and put up PQ? It's very easy. 30, 60, 90. 30, 60, 90 यानी 60 का अपोजिट साइड इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. तो PT के बदले PQ आ गया. अब ST के बदले PQ कैसे आएगा? अब ST भी निकालना है. मेरे को PS स्क्वायर यानी क्या होता है? PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर होता है, राइट? PT तो मैंने हटा दिया PQ डाल के. अब ST भी हटाने का है. तो ST कैसे हटाएंगे? What is ST? अब मैं ये सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ सबका, तुमको और क्लैरिटी आएगा when we are going to solve it. What is ST equal to? ST is equal to QT minus QS. ST यानी क्या है? QT minus QS. मिड पॉइंट नहीं है ये, इसलिए ST के बदले क्या लिखा? QT minus QS. मन नोटिस करो QS का रिलेशन पहले से पता है. What is QS? 1/3 of QR. एंड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, सो QT is also half of QR. तो मेरे को ST in terms of QR आएगा. कैसे आएगा मैं वापस बताने वाला, डोंट वरी. ठीक है? ST will be in terms of QR, but QR PQ से इक्वल है because triangle is equilateral triangle. यानी मैंने PT के बदले PQ डाला, इवन ST के बदले भी PQ डाला. ठीक है? Now in detail, let's understand this first part. एक मिनट, let's go in detail. सबसे पहले this is triangle PQR is an equilateral triangle. So triangle PQR is an equilateral triangle. Angle Q is 60 degree. Why? It's a definition of equilateral triangle. Angle Q is 60 degree. So in triangle PTQ, angle PTQ is 90 degree. ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड एंगल QPT कितना होता है? 30 degree. 30 degree. Reason why it is 30 degree? 30, 60, 90 theorem. Angle is 180 degree. Okay. Now I want to remove PT. So tell me what is PT? PT is 60 का opposite side. PT is hypotenuse PQ. Reason side opposite to 60 degree या फिर 30, 60, 90 theorem. दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा. Okay. So मैंने क्या कहा था? PS square is PT square plus ST square. उसमें से मेरे को PT निकाल के PQ डालना था, वो तो निकल गया. अब तुम्हारा मेन मेहनत ना ST निकाल के PQ डालने पे.
ठीक है, so let's try and do that. ST, what is ST is equal to? QT QT minus minus QS. minus QS. QS. QT minus QS. यहाँ तक क्लियर? रीजन Q dash S dash T. यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. So what is ST is equal to? Let's remove QT. Let's remove this QT. This is a perpendicular. In an isosceles triangle, the perpendicular bisects the base. So equilateral triangle may be perpendicular bisects the base. यानी what is QT? Half of QR. तो मैंने QT के बदले क्या पुटअप किया है? Half QR. Anyone has a trouble with this? QT के बदले half QR पुटअप किया है. कैसे पुटअप किया? Once again listen. In an isosceles triangle, perpendicular bisects base होता है. तो वैसे equilateral triangle also the perpendicular bisects the base. यानी what is QT? Half of QR. Next, let's remove QS. तुम खुद ही बता दो. QS यानी 1/3 QR. 1/3 of QR. ठीक है? तो रीजन लिखो यहाँ पे. Since in an equilateral triangle, perpendicular bisects the base and QS is equal to 1/3 of QR. Okay, ये दोनों उसका रीजन हो गया. Now, let's do the LCM. 2 और 3. 2 और 3 का LCM. 2 3 6. 3 इधर क्रॉस हो जाएगा. 3 QR. 2 इधर क्रॉस हो गया. 2 QR. Tell me, 3 minus 2 will become 1/6 of QR. यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन? करो फर्स्ट वाला. Now, QR के बदले PQ लिखा है. It's an equilateral triangle. Now, ST is equal to 1/6 of PQ लिखा है. अब मेरे को PS square is PT square plus ST square था. PT का सब्स्टिट्यूशन आ गया. ST का भी सब्स्टिट्यूशन आ गया. So let us use Pythagoras theorem. Sir, video pause. Okay, now let's substitute. So PS square is PT square. What is PT? Root Root 3 upon upon 2 Root 3 by 2 PQ square. बराबर है? No sir. पूरा Square. bracket whole. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है. PQ का होल स्क्वायर. ठीक है ना? स्क्वायर डालना है, होल स्क्वायर डालना है. ST का सब्स्टिट्यूशन आता है 1/6 और PQ का होल स्क्वायर. तो दोनों का सब्स्टिट्यूशन आ गया. Now let's solve it. PS square. Root 3 का स्क्वायर is 3. 2 का स्क्वायर is 4. PQ square. 1 का स्क्वायर is 1. 6 का स्क्वायर is 36. PQ square. यहाँ तक क्लियर? Now 4 और 36 का LCM becomes 36. 4 and 36 का LCM is 36. Multiply the whole equation by 36. When I multiply by 36, तो ये क्या हो जाएगा? 36 PS square. PS square. This becomes 36 PS square. इसको भी 36 मल्टीप्लाई हो गया. 36 into 3 by 4 PQ square. इसको भी 36 मल्टीप्लाई हो गया. 36 into 1/36 PQ square. मैंने पूरे इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई किया. So ये 36 PS square है. ये भी 36 मल्टीप्लाई हो गया. ये भी 36 मल्टीप्लाई हो गया. Now tell me, 4 9s are 36, 36 1s are 36. यानी आंसर क्या आ गया? 36 PS square is 9 3s are 27 PQ square. 1 1s are 1 PQ square. Now add this. 36 PS square 27 plus 1 यानी कितना आ गया? 28 PQ square.
अब ये 36 और 28 है, दोनों किसका डिविजिबल है? 36 और 28 दोनों 4 से डिवाइड होता है। 28p अगर ये मैंने सब दोनों को 4 से डिवाइड किया ना, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 9p square. 9 डिवाइड बाय 4 दिस विल बिकम 9ps स्क्वायर। इसको 4 से डिवाइड किया तो 7 7p square. 7. That's your answer. Divide by 4. Okay. Okay. Now, how to tackle this? Now, why this sum is difficult and how you need to do that? Okay. See, if you look at the question carefully, तुमको PS square चाहिए और PQ square चाहिए. ठीक है? Please mute करो, विराज, mute कर. Now, तुमको PS square चाहिए और PQ square चाहिए. So we started with PS square. What is PS square? PT square plus ST square. PT को PQ सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान था. 60 का opposite side. That was quite easy. But when ST has to be substituted, जब ST को substitute करना in terms of PQ, that was the only step where you have to pay attention. सिर्फ उसी step के ऊपर तुमको attention रखना है. What is ST? ST यानी क्या है? QT minus QS. ठीक है? What is QT? Half of QR. QS 1/3 of QR देके रखा है. तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आ गया. LCM किया 3 minus 2 becomes 1/6 QR. Once we get that, QR is replaced as PQ. Why? Because QR and PQ are equal. तो तुम नोटिस करना, PT is written as PQ, ST is also written as PQ, and then the last step is Pythagoras theorem, and you need to solve that. Okay? Square किया है, LCM करके मल्टीप्लाई किया हुआ है. ठीक है? तो ऐसे टाइप का एक सम नहीं है. देयर आर मेनी डिफरेंट सम्स. सबके अंदर सिर्फ ये नंबर चेंज हो गया, ये नंबर चेंज हो गया. प्रोसीजर यही रहने वाला है. इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली सिमिलर है जो अभी अपन ने प्रीवियस सेम किया, बट ये सब उससे इजी है. रीजन इसमें हेल्प के लिए नंबर देके रखा है, तो सम एकदम इजी बन जाता है. लेट्स सी. गिवन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है? PC is known as 1/3 of BC. ओके. और क्या क्या फाइंड करना था? जरा एक बार फाइंड बताना मेरे को, क्या था? AP. AP. Question is find AP. Okay. Now to find it again, like previous sum, I am going to draw perpendicular. Let's take AD. AD is perpendicular to BC. सिमिलर कॉन्सेप्ट. इक्विलैटरल है, मतलब ये 60 है. इस बार इधर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पीसी उस साइड चला गया. ये 60 है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 6 है और ये भी 6 ही है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. देयरफॉर AB is equal to BC is equal to AC is equal to 6 सेंटीमीटर. एंगल C is equal to 60 डिग्री. दोनों का रीजन क्या आएगा? डेफिनेशन ऑफ Equilateral triangle. डेफिनेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ तक क्लियर? ओके. Yes, अब मेरे sir. को बताओ, अगर ये 60 है तो ये 30 आ गया. इन राइट ट्रायंगल ADC एंगल D is 90. ये 60 है, ये 90 है, तो ये थर्ड एंगल Angle 30 degree. आएगा 30 डिग्री. Why? Sum of all Sum of all angles of a triangle is 180 degree. 180 degree. अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो AD लेंथ 60 का अपोजिट है ना. जो लास्ट टाइम किया वही स्टेप है. AD क्या आएगा? AD Root 3/2. root 3/2 of the hypotenuse. हाइपोटेनस AC. ठीक है? रीजन क्या आएगा? 60, 90. साइन अपोजिट टू 60 डिग्री 60 या degree. फिर 30, 60, 90 degree. 90 theorem. ओके. सो अभी बताओ, AD इज इक्वल टू √3/2 ऑफ. लास्ट टाइम इधर ही छोड़ देते थे, पर इस बार अपने का ये सब इजी क्यों है? बिकॉज़ इसमें लेंथ देके रखा है. तो AC लेंथ 6 सेंटीमीटर है. तो व्हाई दिस सम इज इजी? क्योंकि इस सम में लेंथ देके रखा है, तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त बहुत इजी हो जाएगा.
सिर्फ नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका, 3√3 हो गया। इज दैट क्लियर? सो लास्ट टाइम सम में हम लोग इधर छोड़ते थे, अभी मैंने नंबर पुट अप कर दिया, ठीक है? ओके, वन सेकेंड। ओके, अब लास्ट टाइम हमने ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया था, बताओ? DC minus DC minus Very nice. DC minus DC minus PC. DC minus PC. Reason D dash P dash C. What is DP is equal to DC minus PC? Tell me, DC के बदले लास्ट टाइम क्या पुट अप किया था? What was DC equal to? Half of DC. Half of BC. Tell me, PC के बदले लास्ट टाइम क्या पुट अप किया था? What was PC? 1/3 of BC. 3 ये BC. नंबर चेंज हो सकता है, BC 1/3 of BC, ठीक है? Reason in an equilateral triangle perpendicular bisects the base, और दूसरे वाले के रीजन तो गिवन है। ओके, इस बार अपन एलसीएम नहीं करेंगे, लास्ट टाइम एलसीएम किया था, इस बार एलसीएम नहीं करते क्योंकि इस बार बीसी का लेंथ मालूम है कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो लास्ट टाइम और ये टाइम में इजी क्यों है, ये वाला इजी क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का था, इस बार कुछ करने का जरूरत नहीं, इस बार नंबर दे के रखा है, सो द सम हैज बिकम क्वाइट इजी, 3 minus 2 becomes 1 centimeter। चेक करो, बहुत इजी हो गया ये। डीपी मिल गया, एडी भी मिल गया, मेरे को एपी पे इंटरेस्ट है। अब Pythagoras Pythagoras theorem. एडीपी, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज एपी स्क्वायर? AD square AD square plus BP square. DP. बाय पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem. एडी स्क्वायर, नाउ टेल मी एडी का स्क्वायर कितना है, व्हाट इज एडी? 3√3. एडी का लेंथ इज 3√3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। एडी का लेंथ इज 3√3 का स्क्वायर। डीपी का लेंथ क्या है? 1 square. 3 square is 9, 9. √3 square is 3, 3. 1 square is 1, 27 plus 1, 28. 28। 28. AP square is 28, taking square root, root 28, factors निकालो, 2 into 2 into 7, दो 2 में से एक 2 बाहर, 2√7। 2√7 7 centimeter. यहाँ तक क्लियर? Yes. Sir.